जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरु जी। संगत जी, आज हम एक बुक पढ़ेंगे, सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, जिसमें कि सुखमनी आंटी द्वारा लिखा हुआ है। ये बुक में गुरु जी के बारे में। तो संगत जी, हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पर आते हैं। मैं आप सबके साथ ये शेयर करूंगी, रीड करके आप इसको सुन सकते हैं। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के श्री चरणों में ये गुरु जी की बुक पढ़ूंगी, क्योंकि संगत जी ऑनलाइन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इंग्लिश में ही इसको रीड करूंगी। इंट्रोडक्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी आज्ञा से मैं पढ़ती हूँ गुरु जी इसको। All those of you who have had a guru or have been under the guidance of a spiritual master will understand how I feel about Guruji. The relationship between a guru and a disciple is the purest, most beautiful and the most sacred relationships in the world. गुरु समान दाता नाही, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। There is no donor like a guru and no seeker like a disciple. Guru can grant all three worlds to his disciple. Disciple मतलब भक्त। First and foremost, I join my hands in respect to Guruji's parents, who have been the medium of bringing such a great soul into this world. Writing about Guruji is an impossible task, as no one can pen down the vastness and greatness of Guruji. This book is just like a drop in the ocean. By writing this book, I wish to reach out to all those who are looking for a true guru, or those going through rough times and are unable to find solace. It is my humble request to them to come and find peace of mind at Guruji's feet. Even though he no longer is in his physical body, his blessings and presence is still felt by thousands of people all over the world. No longer being bound by the laws of nature, he in fact is even more powerful now. Through this book, I also wish to give a true perspective of Guruji's life, philosophy and teachings to all those who were fortunate enough to meet him in his physical form, as well as those who have joined his sangat after his Mahasamadhi. Let me point out here that there is no one who is new to Guruji. Guruji knows each and every one of us. I seriously believe that we have all had encounters with him in our previous lifetimes. The main objective of this book is to highlight Guruji's teachings. There was a lesson in every conversation he had with us. Everything he said, even if in a joke, had a hidden meaning behind it. One just had to read between the lines to get it. He practically did the things that others preached. I believe miracles do happen, and the miracle of all miracles happened to me the day I met my Guru. My mother and I have been associated with Guruji for many years, and though
This book has mostly our own personal experiences. We do not wish to publicize or glorify ourselves. This book is written with the sole purpose to give a clear insight into Guruji's life and teachings through our experiences and conversations with him. Many years ago, Guruji had told me that I would write a book, but I never knew when that would be and about what. Until just before writing this book, I started to get hints in every newspaper I opened, every SMS I received, or every TV channel I browsed. I truly believe that this book reaching you today is no coincidence. It will only reach you at a time when you need it the most. If this book can answer even one individual's unanswered questions, or can guide someone to find a true Guru, or can help them reach Guruji's temple and get cured of an illness, then my mission behind writing this book will be fulfilled. With love, Sukhmani. Sangat ji, this is our first chapter from this book. His presence was felt even before meeting him. I was hardly 4 years old when I started talking about snakes and how they came and danced with me and played with me almost every night. I remember the first time I told my mother that I see snakes with small bells tied to their tails, and that they come and dance with me. She laughed it off and put it down to the crazy imagination of a 4-year-old. The second time was different though. I got a tight slap across my face. I was lectured on how it is a bad thing to lie and make things up, and the importance of speaking the truth. I thought grown-ups were a rather stranger lot, and even though I kept seeing the snakes for a long time, after that I never said a word. It was my 10th class farewell, and having studied in a convent, the sisters held a prayer meeting before the party. We were all given a rosebuds each, around which was wrapped a piece of paper. We were told that Jesus Christ Himself had sent us all a message regarding our future. I believed the convent sisters were a strange lot too. I tried to look pleased when I went up to the principal to collect my message. All my friends seemed happy on reading theirs. Some were told they would reach great heights, some were predicted to find money, some were told they would find true love. I was very disappointed on reading mine. It said, "Blessed are the pure at heart, for they shall see God." I told Christ. I told Christ would have been happier had He sent me some of the other stuff too. Little did I know that within a few years I would actually meet God in the form of my Guru, and the other stuff would have absolutely no meaning thereafter. It was late at night and I switched off the bedside light to go off to sleep. I tried to relax
and tell myself that what happened the night before was probably just my imagination. I have always had pictures of Guru Gobind Singh Ji and Baba Sri Chandji in my room. That night, I sent out a silent prayer to both of them to protect me. Scared and in anticipation, I waited for it to happen again. I waited an hour or so, and just as I was about to fall asleep, it happened. I felt someone come into my room and sit on my bed. The bed shook, and I heard and felt the mattress sink. I quickly reached out to put on the bedside light, but there was no one. I sat up all night trying to make sense of it all. This happened every night till the day I met Guruji. Over a period of time, I stopped fearing the presence in the room. In fact, I felt safe and protected. I soon realized that my bedside table, that was constantly full of medicines, had now become empty as I was enjoying good health. Many years later, Guruji asked me of this presence in my room and told me that it was he himself who used to come, sit on my bed and watch over me. Ever since childhood, I have felt a protection around me and my family. Many times we have escaped death and severe accidents by merely a few seconds. My life too seemed to be guided by an unknown force that had a plan of its own. In retrospect, I realize now that I was being given subtle hints of what I was headed towards, but was too ignorant and foolish to take notice of them. I didn't realize till much later that it was Guruji who had been watching over all of us. The day we first met Guruji. He welcomed us by saying, "Sada parivar वापस आ गया." My family has finally come back to me. This was the beginning of a beautiful journey with Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Page number 15. Meeting the Guru who changed destinies. This is second chapter. Where are we going? I asked my mother, hoping it wasn't another trip to some saint or some religious place. Being a very pious and a spiritual person, my mother loved taking such trips, and my sister and I always got tagged along. Although I never saw my sister protest, I wasn't too keen on visiting any more saints. I had met too many, and each one had something or the other to say to me. You must pray more, your stars are bad, or your future life is not going to be a very happy one. And one even told me that my birth chart wasn't even worth reading, since there wasn't a single good thing in it. Having heard such negative things about my life endless number of times from endless number of saints and soothsayers, I wasn't ready to hear it one more time. We are going to meet Guruji in Jalandhar. I have heard he is very powerful and can change a person's destiny. I couldn't believe my mother had fallen for this one. Change a person's destiny? That's a new one. Mom gave me one of her looks that told me that my not going wasn't an option.
soon along with my mother, grandfather, and my sister. I was on my way to meet the great Guruji who changed destinies. We reached the temple in Jalandhar at about 11 a.m. and were told that it was closed for the day as Guruji was resting. As soon as we were told this, word came from Guruji that we should be permitted to come. We should be permitted to come in. We were made to sit in the temple and were offered tea. Guruji walked in soon after and asked us to sit next to him. How do I describe Guruji? I guess I can say he was bald and wore silk robes that seemed out of the world. But the truth is, even an ordinary person like me could see that there was something very different about him. His face had a glow of 1,000 bulbs. There was a fragrance around him that smelt divine, and his eyes seemed to pierce through a person's soul. He had the aura of a king, and yet was as humble, kind, and loving like a father. I was speechless. Tera naam ki hai? What is your name? He asked me. Sukhmani. I answered proudly, since I was very fond of my name. Bada changa naam hai. It's a very nice name, he replied. He gave me a long look and told me about the health issues I had been facing since a few years. I couldn't believe that someone who had just met me briefly could tell me about my illnesses. I remember all the other saints I visited had to be told of the problems I was going through, but this was the first time I had met someone who already knew. He seemed to read me like a book. Guruji was like a magnet I could not pull away from. Even though I had a few questions, I didn't, however, have any doubts that I had finally come to the right place. I had come home in the few hours that we spent with him that day. I felt so much of love and affection from him and for him that by the end of the day I didn't want to go back home. We were told to come regularly for the next 15 days, and strangely, I looked forward to meeting him again. To the amusement of my family, I used to be the first one to get ready and waiting to be taken to Guruji. The next day, when we entered the temple, Guruji suddenly looked at my mother and said, "Tu Karminder Kaur di beti hai?" "You are Karminder Kaur's daughter." No one could have possibly told him my grandmother's name. "ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ?" "Do you know you have come back to me after 70 years of meditation?" My mother was only 43 at that time, which only meant he was talking about her previous lifetime. He told her that she had been with him in her past 2 lifetimes. Being a student of psychology, I was greatly fascinated by the subject of past life and life after death. Needless to say, he knew about my fascination. He came and sat next to me on the floor and looked me in the eye. I tried to be brave and looked into his, and what I saw in them sent shivers down my spine. His eyeballs
started to rotate, and in them I saw something. But I was so scared, I quickly looked away. Guruji smiled and asked, "Do you know what transmigration of souls means?" I knew what it meant, but I couldn't find my tongue. Transmigration of souls is a belief among various cultures where it is believed that a soul never dies and keeps taking birth in a different body. He further asked, Do you also know that a lot of souls from the West have taken birth in India at this moment?" On hearing this, my jaw dropped because since a few years I had been seeing flashes of my past lives, and in most of them I wasn't an Indian. All that I saw about my past lives was later confirmed by Guruji. I could only but stare at him in amazement. How did he know? Seeing me badly shaken up, turned to my mother and said, "आज मैं तेरी बेटी नू शिवजी दे थोर दर्शन करवाते." Today I had given your daughter a bit of Shivji's darshan. It is then that I realized that the image that was taking shape in his eyeballs was probably that of Shivji. "Bring betel leaves worth ₹100. I shall do Sukhmani's operation tomorrow," Guruji told my mother before giving us leave for the day. I had heard that Guruji cured people by placing betel leaves over the affected area. I had also seen a spoon next to his asan, which he used to carry into the room known as the OPD room. "This is scary business." I told my mother that there was no way I am going to let anyone take me to that OPD and do some kind of an unconventional operation. The next day I very hesitatingly went back to him, and the first thing he asked my mother was about the betel leaves. All day I tried to get a glimpse of the room everyone called the OPD. The door always remained shut and my imagination ran wild. Does he actually cut open people inside that room? What does he do with the spoon? Scoop things out? The thought was enough to make me panic and sweat. All this while Guruji was reading my thoughts and having a laugh at my expense. He gave me a smile and finally asked my mother to hand him the betel leaves. He held them and said some prayer and handed them back to her, saying, "Put these on Sukhmani's stomach for an hour. When you go home, and after an hour, dispose them in flowing water or bury them in a clean area." I took a breath of relief. We went back home and did as we were told, and I instantly felt an improvement in my health. "Apni beti mainu de de. Give your daughter to me," Guruji told my mother one day. I was shocked to hear this, and I actually thought my mother may just give me away to him. I imagined cleaning, sweeping, mopping and cooking in his temple for the rest of my life. At that time, the very thought seemed depressing. "Guruji, मेरी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ." "Guruji, both my daughters I give to you," said my mother. I looked at Guruji, hoping he didn't meant what I was thinking. He laughed at my foolish thoughts and said, "दोनों मेरियां खास बेटियां हैं. They are both my special daughters." My family and friends
thought I was Nastic, atheist, and I never bothered to correct them, nor did it hurt me to be called so. One morning, as I walked into his room, he said, "Lo aa gayi Nastic. Here comes the atheist." For the first time it hurt me to hear that from him, but I kept quiet. He gave me one long look and then said, "नहीं, नास्तिक नहीं है, रब नाल नाराज है, तैनू लगता है रब दूसरे लोकां दा है, तेरा नहीं." No, not an atheist. You are angry with God. You feel that God does for everyone else but not you. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरपा की बेटी गुरपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल संगत जी वीरवार गुरु जी का दिन था, तो आप गुरपा की बेटी गुरपा आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी माफ कर देना अपनी बेटी को। गुरु जी कल गुरबा ने सत्संग सुनवाया संगत जी, तेरे और तेरे हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। उसमें तो संगत जी कल क्या हुआ, सच में कल जो सत्संग में सुनवाया, तो मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर में बहस हो गई। तो मेरे हस्बैंड आज फ्राइडे को मेरे साथ, फिर उनका मेरे साथ झगड़ा हुआ। पहले मेरे ससुर जी से हुआ सुबह, फिर दोपहर को मेरे साथ हुआ उनका झगड़ा। तो अब तो सॉल्व आउट हो गया संगत जी, गुरपा की मेहर कृपा से। तो उसमें ना संगत जी, तो उसमें गुरपा ने उपाय भी बताया था, जो कल मुझे सत्संग सुनवाया था ना संगत जी, के पीली सरसों को दो लौंग, 7 काली मिर्च 7 बार अपने सर से उतार के गुरपा का मंत्र जाप करते करते जला दो। तो संगत जी मैं कोई उपाय नहीं कर पाई, मैं भूल गई। कल थर्सडे को बिल्कुल नहीं कुछ कर पाई, भूल गई। वो माँ बंगला मुखी माता जी का पाठ भी करने को कह रही थी कि जितनी बार, जैसे 1 बार करो चाहे 2 बार करो, जितनी आपकी श्रद्धा है। तो मैं वो भी नहीं कर पाई संगत जी। रात को 4 मुखी दिया और उसमें पीली सरसों, 2 लौंग, 7 काली मिर्च जलानी थी डोर पे। गुरु पाप की बेटी भूल गई, सॉरी गुरु जी माफ कर देना। गुरु जी का अगला मैसेज संगत जी आया, ज़्यादा ना सोच, तेरे कम हो गए ने, टेंशन ना ले, बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। आई लव यू गुरु जी। इतने सुंदर मैसेज भेज के हिम्मत देते हो गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगला मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते हुण डॉक्टर चेंज ना करी, इलाज ठीक हो रहा है, हेल्थ ब्लैसिंग भेज रहा हाँ तेरी फैमिली ਲਈ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरी मम्मी की उम्र लंबी कर दी, उनकी बीमारी ठीक कर दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी मम्मी को ये ब्लेसिंग
भेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। गुरु जी आपने अपनी बच्ची को, पूरी फैमिली को, मम्मी पापा को ब्लेसिंग दे दी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर मेहर, हर किरपा, हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सॉरी संगत जी। गुरु जी के लिए 2 लाइंस। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अगला मैसेज गुरपा का, बहुत ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ मैसेज अपनी फैमिली नाल ज़रूर शेयर कर। पूरी संगत परिवार के लिए है। संगत जी आप सबके लिए गुरपा ने मैसेज भेजा है। गुरपा का आदेश है। गुरु जी कहते, मैं तुझे सदा सुखी होने का आशीर्वाद देता हूँ। इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ियो। यह आशीर्वाद उसके पास भेज जिसके पास तू भेजना चाहती है, जिसको तू सदा खुश देखना चाहती है। मेरे मैसेज को इग्नोर मत कर। तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। खुशियों की सदा मैं तेरे साथ रहूँगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अगला मैसेज संगत जी, गुरु जी महाराज ग्रेस 26 जून 2025। मैं ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ऑब्स्टिकल आ रहे वो है तुम्हारे डिज़ायर्स, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस। ये चीज़ें ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾएं ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। कभी भी किसी दी रीस ना करी कि उसके पास ये ते मेरे कोल नहीं। मेरे को जो ब्लैसिंग मिलेगी वो मेरे कोलों जो ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਗੁਰਪਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੌਰੀ ਗੁਰਪਾ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी कहते ने कि 7 जुलाई को मेरे स्वरूप के आगे कोई भी रोएगा नहीं। सब मुझसे हंस के मिलना, हंस के बातें करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, इतने सुंदर मैसेज देने के लिए, इतने सुंदर सत्संग सुनवाने के लिए।
आपका अनंतम शुक्राना सारी संगत परिवार को भी शुक्राना, जो अपना सत्संग भेजती हैं और हमारा सुनती हैं। सारी संगत परिवार की सत्संग की ब्लेसिंग हमें भी मिलती हैं। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, सारी शुक्राना संगत गुरु जी। परिवार को ओम जय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, शनि भगवान ने तुम्हारे आने वाले जीवन में जो भी कष्ट था उसको दूर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना शनि भगवान जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा, मैं और हनुमान जी तुम्हारे जीवन से सभी बाधा को दूर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे हनुमान जी को शुक्राना भरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज फिर से हम लोग का संकट विपत्ति बिना बोले, मतलब बताए भी नहीं, काट दिए और काट रहे हैं। गुरु जी महाराज ने कहा, कुछ दिनों से सत्संग में पुलिस केस का सत्संग सुना रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को फंसा करके पुलिस केस करने वाला है, या मेरा इमेज मटिया मेट करने के लिए वो शत्रु षड्यंत्र कर रहा है। गुरु जी महाराज वो सत्संग तो 2-3 बार सुन लिए हैं, जब आया है, आज फिर से सुन लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, सुबह से ब्लेसिंग वाला सत्संग सुना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और गुरुजी महाराज ने कहा, तुम्हें मकान, घर और दुकान मैं ब्लेस कर रहा हूँ। 777 का नंबर ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जितना भी उपाय बताते हैं वो आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनने के बाद भी जब भी वो प्रहार करती है तो भगवान से हमारा दूरी महसूस होता है। भगवान से जैसे कि कोई रिश्ता ही महसूस नहीं होता, अलगाव, मतलब जैसे हम पर जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। ये बात बहुत ख़राब लगता है। ये प्रहार का असर होता है, पूजा पाठ आपका छूट जाता है, भगवान के पास समय नहीं बिताते हैं, बहुत दिक्कत होता है। जो भी हो नहीं कर पाते, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। इतना मतलब प्रभाव रहता है कि जिसके कारण जीवन में दिक्कत आ जाता है, धर्म छूट जाता है। धर्म छूटने का मतलब है जीवन में संकट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हर हर महादेव उमानाथ मंगलम, ओम नमो ममलेश्वरनाथ मंगलम, ओम नमो ममलेश्वरनाथ मंगलम। ओ परम पुनीत प्राणनाथ मंगलम, परम पुनीत प्राणनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हर हर महादेव उमानाथ मंगलम। पहले माँ का प्यार मिला, मेरी माता रानी को अनंतम शुक्राना। जय माता दी। माता जी को अनंतम शुक्राना। फिर कृष्ण जी का साथ मिला, दोस्ती मिला, मेरे कृष्ण जी को प्यार भरी श्री राधे। फिर कृष्ण जी ने हमें शिव जी से मिलाया। हर हर महादेव। बट कृष्ण जी, कृष्ण या शिव जी में कोई अंतर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर सब भगवान ने मिलके हमें गुरु जी से मिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान को पता था कि ये मतलब अब कष्ट नहीं सह पाएगी। भगवान को लगा कि हमको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए सभी भगवान ने हमको गुरु जी से मिला दिया। और रहा हनुमान जी का बात,
हनुमान जी शुरू से वो भी सदा मेरे अंग संग सहाय हो करके सदा मेरा रक्षा किए, मेरा मनोबल बढ़ाए। सब भगवान का अनंतम शुक्राना। पितृ पितृ महाराज को, पितृदेव को गुरु जी महाराज मुक्ति दें, मोक्ष दें, उनका अच्छा करें, कृपा करें, दया करें, उनका जो भी अच्छा है वो ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो एबॉर्शन से प्रेत में होकर के प्रेत आत्मा बन गया है, उसको भी मोक्ष प्रदान करें गुरु जी। और मेरे किए हुए पाप को क्षमा करें गुरु जी। मेरे सभी पाप जो भी हमने किया है, जान के भी किया है और अनजाने में भी किया है, हर पाप को क्षमा करें गुरु जी। न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं गुरु जी, मेरे सभी जन्मों के पाप को क्षमा करो। सबसे पहले यही कृपा करो भगवान जी कि हम कोई पाप कभी नहीं करें। जितना हम धर्म कर रहे हैं भगवान जी, उतने पता नहीं ब्लैक मैजिक है क्या है, हमको भी नहीं समझ में आता भगवान जी। लेकिन धर्म से हम दूरी महसूस कर रहे हैं भगवान जी, पता नहीं क्या हो गया। कृपा करो, दया करो, धर्म ना छूटे, भगवान से प्यार ना छूटे, ये रिश्ता दिन दूना रात चौगुना मजबूत बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी गुरु परिवार संगतों को, और जय जय गुरु जी हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपके प्लेटफॉर्म का, और जिसके द्वारा हमारे सत्संग गुरु जी के श्री कमल चरणों में जा पाते हैं, और हमें हमें जो गुरु जी है पल पल अपने ब्लेसिंग की वर्षा से नहला देते हैं। और सभी संगतों जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको जय जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज सभी को ब्लेस कीजिएगा, सभी को ब्लेस कीजिएगा। और यहाँ पर मैं गुरु जी की बेटी कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ। आज का डेट जो है 28 जून 2025 है। समय 2:44 हुआ है। और गुरु जी का जो सत्संग है, गुरु जी बुलवाएंगे, गुरु जी की आज्ञा से जो गुरु जी चाहेंगे वही गुरु जी बुलवाएंगे। और गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। और सभी गुरु परिवार मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र की सेवा ले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। अब गुरु जी महाराज सबसे पहले तो क्षमा याचना गुरु जी महाराज, किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में और किसी भी समय मैंने जो भी गलती की हो गुरु जी महाराज, और गलतियां तो आज भी हो रही हैं गुरु जी महाराज, सभी के लिए क्षमा याचना है गुरु जी महाराज। अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपने पितरों और जो भी अकाल मृत्यु की वजह से या किसी भी प्रकार की मृत्यु से जो भटक रहे हैं, उन सभी पितरों को गुरु जी महाराज अपने श्री कमल चरणों में स्थान दे गुरु जी महाराज। उनका कल्याण करे गुरु जी महाराज, कल्याण करे। मैं कुल देवी मेरी माँ काली को प्रणाम करती हूँ, और श्री चरणों में से श्री कमल चरणों में मैं माता को सेवा लगाती हूँ। हे माँ, सब आपके द्वारा ही, ये जो शरीर में शक्ति है वो आप हो गुरु जी महाराज, वो आप हो माँ। हे माँ, अगर आप ना होती तो ये शरीर में शक्ति ना रहती। हे माता, हे कुल देवी माँ, जो भी गलती हमसे हो गई हो
मुझसे हो गई वो है माँ, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। सो गुरुजी महाराज, आज मैं अपनी बेटी आंटी, आपकी नातिनी आंटी की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। और मेरी आपकी बेटी आंटी, जो नातिनी आंटी है, वो उनका नाम चारिसा गुरुंग है और वो अभी 10th क्लास का पेपर की तैयारी कर रही है। हे गुरुजी महाराज, उसकी तैयारी कराइए गुरुजी महाराज, तैयारी। कल तो वो जस्ट रोने लग गई थी, कल उसका 40 मार्क्स का पेपर हुआ था गुरुजी महाराज। बोली मम्मी पढ़ा हुआ कुछ आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं गुरुजी महाराज, आप उसके अंग संग बैठ के उसकी तैयारी कराइए गुरुजी महाराज। वो कर रही है लेकिन पता नहीं क्या चीज़ उसका साथ नहीं देती गुरुजी महाराज। हर समय वो बोलती मम्मी मार्क्स आते ही नहीं है, मार्क्स आते ही नहीं है, ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा, क्या ऐसी नेगेटिविटी है। माँ मेहनत करती पर उस तरह का रिजल्ट नहीं आ पाता गुरुजी, उसका नहीं आ पाता। कल तो लिटरली वो रोने लग गई थी गुरुजी महाराज, रो रही थी कि ऐसा क्यों है गुरुजी महाराज, क्योंकि ऐसा बार बार होगा गुरुजी महाराज के साथ। तो उसका एक तरह का जो विश्वास है गिर गया है गुरुजी महाराज का विश्वास गिर गया है। अगर वो जिस दिन अच्छे नंबर लाएगी, उस दिन उसका वो जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप ही अप हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज उसकी इस विश्वास को गिरने मत दीजिए गुरुजी महाराज। वो बहुत गिर गया तो उठना, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन, हमारे समय की जनरेशन अलग थी और आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा विश्वास की कमी है। और कमी है तो उन्हें सहन शक्ति की कमी है, उनके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है गुरुजी महाराज। जिस तरह का हमारे अंदर सहन शक्ति था, हर चीज़ को लेकर हम उठ जाते थे, मार भी खाएंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। लेकिन ये बच्चे जब गिरते हैं तो उठते ही नहीं हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं गुरुजी महाराज। इससे कृपा कीजिए गुरुजी, इसकी तैयारी खुद कराइए गुरुजी महाराज, इसके अच्छे नंबर आए ताकि इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो अपने लिए प्यार पैदा हो गुरुजी महाराज। वो अपने आप से भी इतना प्यार नहीं करती है, वो बोलती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मम्मी, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के उसका दिल टूट जाता है। इसीलिए उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव है ना, वो नहीं है बिल्कुल भी गुरुजी महाराज। और हम जितना भी बोले वो हमारी सुनते ही नहीं है गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज, सिर्फ आप हो गुरुजी महाराज। ये जो काम है, जो ये सब है, ये गुरुजी महाराज आपके द्वारा ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता गुरुजी महाराज। उस बच्चे को गिरने मत दीजिएगा गुरुजी महाराज, वो अंदर से उसे टूटने मत दीजिएगा, नहीं तो गुरुजी महाराज वो सब चीज़ छोड़ के बैठ जाएगी और अपने आप से ही बच्चा फिर घृणा करने लग जाएगा गुरुजी महाराज। अभी तो 10th है गुरुजी महाराज, अभी तो जो उसकी जो लाइफ की जो फाइटिंग है वो बहुत लंबी है गुरुजी महाराज। अभी बहुत कुछ देखना है, उठना है, चीज़ों गिरना है और उठना है, गिरना है उठना है। मुझे आत्मा बल दीजिए, शक्ति दीजिए गुरुजी महाराज, शक्ति दीजिए। और हे गुरुजी महाराज, उसकी उसकी उसके पिताजी को भी उसके ऊपर पता नहीं क्यों विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ का, ये कर पाएगी, अच्छा करेगी। वो ऐसे ही नेगेटिव बात करते हैं, और पति अंकल जो है नेगेटिव बात करते हैं, जिससे मेरा भी कभी कभी मैं भी कभी कभी बहुत डाउट में आ जाती हूँ, कभी मैं भी डाउट करने लग जाती हूँ, आपसे मैं भी डाउट करने लग जाती हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन नहीं, मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज मुझे कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, बच्चे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, पति अंकल का हाथ नहीं छोड़ेंगे गुरुजी महाराज। बस इसकी तैयारी करिए, इसके दिमाग में, सांसों में, शरीर के एक एक अंग में आप रह के इसका एक्शन कराइए गुरुजी महाराज। जो भी आप चाहते हो उस वो कराइए गुरुजी महाराज, उससे कराइए गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना महाराज। उसके पग पग में रहिए गुरुजी महाराज, पग पग में उसके साथ रहिए, साथ चलिए गुरुजी महाराज। का पेपर खुद अपने हाथ से लिखिए। लेकिन गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ मेहनत करें, पहले मेहनत करें अपने आप से। बस आप आपकी उसके जो उसे डिस्ट्रक्शन से बचाइए गुरुजी महाराज। उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए गुरुजी महाराज आप, ताकि पढ़े, और जो पढ़े मन धन तन से बने। रो रो के हिंदी भी रो रो के पढ़ती है गुरुजी महाराज, मैथ से डरती है, हिंदी से डरती है गुरुजी। हिंदी से डरती तो नहीं है, लेकिन हिंदी करने से कटती है, मन नहीं लगता उसे गुरुजी महाराज। उसकी रुचि, उसको अंदर से खुश रखिए पढ़ते समय, उसे गुरुजी महाराज खुश रखिए। उसके अंदर एक
और उसको एक लाइफ का जो मोटो है उसको जगाइए गुरुजी महाराज। उसे ये भी नहीं पता भी क्या करना है, कैसे करना। अभी चलो ठीक है 10th क्लास में इतना पता नहीं रहता, लेकिन गुरुजी वो चाहती कि मुझे किस दिशा में जाना, वो दिशा मुझे पता होनी चाहिए, तब मैं मेहनत करूँगी, तब मैं अच्छे से पढ़ूँगी। लेकिन मैं उसको बोलती बेटे नहीं, आपका 10th है, आप अच्छे से पहले स्कोर कीजिए, मार्क्स परसेंटेज स्कोर करो अच्छे से पहले, उसके बाद अपने आप ही लाइन जो है मार्क आपको मिलता, डायरेक्शन मिलता रहेगा। तो लेकिन गुरुजी महाराज अभी से टूटने मत दीजिए, बहुत ज़रूरी है गुरुजी महाराज। पढ़ती है वो, मेहनत कर रही है, 10-10 12-12 बजे तक पढ़ती रहती है गुरुजी महाराज, लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं है गुरुजी महाराज, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है अपना कुछ ज़्यादा। ट्यूशन भी मैंने लगाया, उसका चेंज किया है अभी गुरुजी महाराज। जो उसके लिए अच्छा है, पग पग में उसके साथ वही डायरेक्शन उसको लेके चलिए, उसके दिमाग में रहिए, मन में रहिए, सांसों में रहिए, उसके हाथों में रहिए गुरुजी महाराज। बस आप हो गुरुजी महाराज, और मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पे कि गुरु बाप मुझे पता, मेरे अंग संग रहते गुरुजी महाराज। मैं जब भी आपको याद करती हूँ गुरुजी महाराज, आप मुझे अपने दर्शन दे देते हो, तितली रूप में, किसी ना किसी रूप में आप मेरे को दर्शन देते हो गुरुजी महाराज। मैं जब भी आपको पुकारती हूँ, आप मुझे अपने दर्शन देते हो। इससे बड़ा मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ गुरुजी महाराज। अभी एक जो गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ में गुरुजी महाराज। अब जो ये है ना गुरुजी महाराज, लास्ट जो है, अब जीना ही आपके लिए गुरुजी महाराज, आपका नाम ले लेके आपके मंत्र को जाप करके ही जीना है गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज इस विश्वास को कभी गिरने मत दीजिएगा गुरुजी महाराज, हमेशा मेरा हाथ पकड़ेगा गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं आपकी सेवा, आपका दिया, आपका भोग मैं इतना नहीं कर पाती गुरुजी महाराज, क्योंकि पता नहीं गुरुजी महाराज कभी आलस खत्म कर देता है, कभी कुछ, कभी मन नहीं करता करने, कभी कभी पैरों में दर्द है, कभी कुछ है, लेकिन मेरे मन की जोत जो है जलती रहती है आपके लिए गुरुजी महाराज। मैं अपने मन की जोत और मन से ही आपको मैं खाना, जो भी भोग लगाना है, जो भी मैं मन से लगाती हूँ गुरुजी महाराज आपको, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ तो मन से करती हूँ गुरुजी महाराज को आपको। बस जितनी मैं पूजा कर पाती हूँ, जितना मैं कर पाती हूँ गुरुजी महाराज, इसको स्वीकार करना गुरुजी महाराज, स्वीकार करना गुरुजी महाराज। अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो है, जैसे गुरुजी आपने बोला कि कुछ भी तेरे को टेंशन नहीं लेना है, सब मेरे पे छोड़ दे। मैंने उसका जो है, उसका जीवन मैंने ब्लेस कर दिया है, वो बहुत तरक्की करेगी। कोई चिंता करती है तो गुरुजी महाराज टेलीपैथी मैसेज में मुझे ऐसा बोलते हैं, मैंने सोने के अक्षरों से उसका जीवन लिख दिया है, भविष्य लिख दिया है। शुक्राना शुक्राना, हर टाइम गुरुजी महाराज इतने पॉजिटिव टेलीपैथी मैसेज मुझे भेजते, कभी भी डाउन नहीं होने देते मुझे, और मेरे विश्वास को बनाए रखते हैं। और उनके ये टेलीपैथी मैसेज की वजह से ही मैं आज, मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है गुरुजी महाराज। आपका बर्थडे भी आने वाला है गुरुजी महाराज, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपकी लीला ऐसे ही फैलते रहे चारों तरफ, आपकी जो खुशबू है चारों तरफ फैले गुरुजी महाराज, चारों तरफ सबको आपकी ब्लेसिंग मिले गुरुजी महाराज, सबको ऐसे आपका प्यार मिलता जाए, सब अपने अपनी परेशानियों से ऊपर उठे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं गुरुजी महाराज मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना करने जाऊँ गुरुजी महाराज, इनमें भी बहुत बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है गुरुजी महाराज। आपको पता नहीं गुरुजी महाराज, आपको पता है, सॉरी गुरुजी महाराज, आप जैसा आपकी आप बोलते हैं कि जेम्स वगैरह, अंगूठी, ये कुछ नहीं पहनना चाहिए, कुछ भी नहीं पहनना, लेकिन गुरुजी महाराज ये सब मैंने उनका उतरवा दिया है। उनके 2-2 रिंग थे, मोती, मूंगा, और गले में भी था उनका, वो सब उतार दिया है गुरुजी महाराज, सब कुछ उतार दिया है। अब बस आपसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी बाहर जाते हैं गुरुजी यहाँ बोलती, बस गुरुजी महाराज ने बेटे अंकल का ध्यान रखना, उनके साथ जाओ। और गुरुजी महाराज अंग संग रहते और रक्षा भी करते आते, ब्लेस भी करते आ रहे। अब कुछ नहीं होता उनको, सब चीज़ उतार दिया, रिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और वो खुद बोलते हैं मेरे को ये पहनना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे कारण वो पहनते थे।
और मैंने उनको हर चीज़ से फ्री कर दिया है गुरुजी महाराज। इन सब चीज़ों से गले में भी मैंने रुद्राक्ष तो एक तो नहीं, काफ़ी 6-7 रुद्राक्ष डाले हुए थे उन्होंने, वो भी निकाल के हमने बहते पानी में डाल दिया। अब जब गुरुजी महाराज पहनाना चाहेंगे तो गुरुजी महाराज खुद ही ब्लेस करेंगे रुद्राक्ष भी। सब गुरुजी में छोड़ दिया कि सब कुछ निकाल दिया। तो इसके लिए गुरुजी महाराज सारे जितने भी प्रकार के ये भ्रम पाल लेते हैं गुरुजी, उनसे हमें आज़ाद करने के लिए गुरुजी महाराज कोटि 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 शुक्राना। अब मैं कोई पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी किसी के पास नहीं जाती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा सिर्फ मेरा जो दिन शुरू होता है मेरे गुरुजी के चरणों से, प्रणाम से शुरू होता है। रात को मैं उनको प्रणाम करके सो जाती हूँ और ये मेरी सांसों में अंग अंग संग रहते गुरुजी महाराज हमेशा। मेरा दिन उनसे शुरू होता है, रात उनसे खत्म होती है बस। और इतना एक अटल विश्वास है गुरु जी के ऊपर, क्योंकि गुरुजी महाराज चमत्कार करते हैं। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमारे कष्ट काटते हैं। सपनों में गुरुजी महाराज इतने मेरे अभी भी मेरे जो कष्ट है काट रहे हैं गुरुजी महाराज। शुक्र ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं गुरुजी महाराज जो अलग ही होते हैं। मतलब आदि से हम भूल ही जाते हैं, अलग ही होते हैं, मतलब उनको सोचा ही नहीं होता है। अलग ही तरह से हमारे जो कष्ट है वो काटते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। और कुछ भी होने से पहले हमें अलर्ट कर देते हैं और सत्संग के द्वारा हमारा वो चीज़ काट भी देते हैं गुरुजी महाराज। और टेलीपैथी तो गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रांग है। जैसा हो रहा है हमारे जीवन में, जो हम पूछ रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं मन में, जो हमारे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड उत्तर या उसी से रिलेटेड सत्संग गुरुजी महाराज टेलीपैथी के थ्रू भेजते हैं। ये चमत्कार ना है तो क्या है गुरुजी महाराज, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, वो भी आज के कलयुग में। और इसी की वजह से हमारा जो कनेक्शन बना है बहुत धीरे धीरे स्ट्रांग बनता गया है, विश्वास स्ट्रांग होता गया है गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही आपकी खुशबू चारों तरफ इस सृष्टि में फैले गुरुजी महाराज। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जीवित हो या जीवित ना हो, सब जगह आपकी रोशनी फैले, आपकी खुशबू फैले गुरुजी महाराज। इसी तरह से सभी के सत्संग जो मेरा सत्संग सुन रहा उन सभी के जीवन को उज्जवल कर दो गुरुजी महाराज। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को खूब ब्लेस करो गुरुजी महाराज। खूब बहुत बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं वो गुरुजी महाराज, बहुत बड़ा कार्य हो, खूब ब्लेस्ड करो गुरुजी महाराज उनको। अब यहाँ पर मैं अपना सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। मैं निशा गोरखपुर से। अभी 12:28 हो रहा है रात के, और दिन शनिवार है आज, और तारीख 28 जून 2025। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार के दिन मैं हनुमान सुंदरकांड सुन रही थी और मैंने उस पर कमेंट किया, तो जो कमेंट थंब है उस पर 7/13
मतलब गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर 713 कि तेरे साथ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये पोस्ट भी मैं बिपिन अंकल के चैनल पे भेज दूंगी। बहुत बड़ी मुझे शुक्राना मुझे गुरु जी ने दिया 713, और गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो गुरु जी हर पल हर समय साथ में रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर एक एक सांस का शुक्राना। मुझे हर रंग से सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना, मुझे स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, मुझे खुश रखने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और सत्संग है मेरा कल का, शुक्रवार के दिन का। कल मैं बाहर गई थी बैंक के काम से, और कुछ मार्केट में काम से जाना था। तो मैं घर से सोच के निकली थी कि आज मैं तो ऐसे गुरुजी को साथ में हमेशा लेके जाती हूँ। और हाँ, मैंने गुरुजी का इस सत्संग में मुझे 22 तारीख के सत्संग में मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था। तो मैं गुरु उन स्वरूप को मैं फ्रेमिंग कराने के लिए दी हुई थी। तो कल मैं अच्छा दिन था, जगन्नाथ भगवान जी का रथ यात्रा निकला। तो मैं गुरु जी के स्वरूप को भी मैं कल ले आई घर। और गुरु जी से मैं बोलकर गई कि गुरुपा आप मेरे साथ चलो, और मेरे साथ ही आप आना, और मेरे साथ ही साथ रहना गुरुपा, मुझे अकेले मत छोड़ना। तो गुरुपा मेरे साथ ही साथ थे और मेरे साथ ही आए, और गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया। मैं घर से ये सोच के गई थी कि आज जगन्नाथ भगवान जी का रथ यात्रा निकलेगा, तो मैं आज मंदिर जाकर श्री नारायण का दर्शन करूँगी। तो मुझे लेट हो गया, मुझे मार्केट में ही, और बैंक से लेट हो गई मैं, और मुझे 7:30 8 बज गया था मैं मार्केट में मुझे। तो मैं मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन वहीं गुरुपा ने जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करा दिए मुझे। उनका रथ यात्रा इतना अच्छा निकला, मैं इसे ग्रुप में शेयर भी की हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो भी सोचो मन में वो गुरुपा पूरा कर देते हैं। मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो गुरु जी ने जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में मुझे शामिल किया। उनका प्रसाद मिला मुझे, मैंने उनके चरण छुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, जो गुरुपा हर पल साथ साथ रहते हैं। ये बड़ा मेरा बहुत बड़ा ब्लेसिंग था आज का। कल भी मौसम मैंने जैसे बताया है कि मौसम बारिश जैसा रहता है, लेकिन मैं गुरुपा से अरदास करके निकलती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ बारिश ना हो, जब मैं घर आ जाऊँ तो बारिश हो। तो गुरुपा हमेशा साथ देते हैं और बात गुरुपा सुनते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मौसम बिल्कुल गुरुपा अच्छा कर देते हैं, धूप छाँव लगा देते हैं कि मेरी बेटी बाहर निकली है तो उसे कोई कष्ट ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग मैं यही विराम देती हूँ। आगे फिर मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझे शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं विपिन अंकल और अपने गुरुजी से और अपने सारे संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। और जिस तरह गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं, ऐसे मेरे गुरुपा मेरे सारे संगत फैमिली को ब्लेस करना आप। और मेरे विपिन अंकल, सौम्य आंटी के फैमिली को ब्लेस करना, मेरे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे सारे फैमिली को ब्लेस करना।
और जो मेरे संगत नहीं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना गुरुपा, सबके भला करना। और गुरुपा सबसे पहले आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आप ही हो गुरुपा, हमारे संगत परिवार के सर पे आपका हाथ है। तो गुरुपा आप अपना ध्यान रखना, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना। और मेरे पूर्वज को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, मेरे मम्मी पापा को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना। सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, सदैव उनकी रक्षा करना, सदैव उनकी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक सांस का गुरु जी शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आंचल उत्तराखंड देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चरण में शेयर कर रही हूँ। आज का समय है थर्सडे, 26 जून है 2025 और सुबह के 7:15 हो रहे हैं। जय गुरु जी। हम महामंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी और विपिन अंकल, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना, जो इतनी प्यारी सुबह हम देख पाती है। हर एक सुबह जो देख रहे हैं, हर एक रात जो हम अच्छे से काट रहे हैं गुरुपा, सब आपकी कृपा है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप तो जानते हैं कल का दिन भी बहुत भारी था। कल मैंने सत्संग भी जल्दीबाजी में मैं अच्छे से भी नहीं कर पाई और वो अभी तक शेयर भी नहीं हुआ है। इसमें भी आपकी ही मर्ज़ी है, मैं जानती हूँ गुरुपा। जैसा आप करवाओगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने मुझे और हमें जोड़ा है अपने साथ गुरुपा। तो अब तो आप हमारा भला बुरा सब आप देखोगे गुरुपा, और जो भी करवाओगे आप ही करवाओगे, और उसी में मेरी मर्जी भी रहेगी, हमारी रज़ा भी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कल को मैंने जैसे कि कल के सत्संग में बताया था, कल भाई का, मेरे कज़न ब्रदर है सागर, उसका कल को ऑपरेशन हुआ है। तो थोड़ा डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन उसके लिए अभी भारी है, आईसीयू में है वो, और 10-20 दिन अभी कि वो अच्छे से सरवाइव कर ले तो फिर आगे के लिए उसके अच्छा रहेगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है। तो पर गुरुजी आप तो डॉक्टर सबसे ऊपर है, आप ही हमारे डॉक्टर है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे भाई के अंग संग रहना गुरुपा, और उस पर उसको हेल्प प्लेस करना गुरुपा, उस पर कृपा करना गुरुपा, कृपा करना गुरुपा। मैं जो मेरी बुआरी है, मतलब मेरी भाभी बोलेंगे, मैं उसको परसों जल प्रसाद भी दे के आई थी गुरुपा, आपका ब्लेस किया हुआ, जो मैं आपके स्वरूप के आगे रखती हूँ। बल्कि वो तो मैं बड़े मंदिर से जो लाई हूँ मैं वो देकर आई हूँ, और जो चंदन तिलक में आपका तिलक निकाल के जो रेडी करती हूँ ना गुरुपा, जो हम लगाते थे, वो डिब्बी भी मैं दे के आई हूँ। लेकिन वो आईसीयू में है, वो अभी तो बोल रही थी कि वो कैसे लगाऊंगी, बोल रही थी कि दीदी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कोशिश करना। लेकिन वो गुरुपा शायद आपने उसे भी जोड़ा नहीं है इतना, तो आप उसे जोड़ लीजिए ताकि वो दिल से अच्छे से कर पाए, जाप कर पाए। आपका जो सौभाग्य हमें मिला है वो उसको भी मिल जाए गुरुपा, आप जोड़ लीजिए, उसको भी ज़रूरत है। और हमारे बोलने से तो कुछ होगा नहीं गुरुपा।
आप जब जोड़ोगे उसको तभी वो उस चीज़ को मानेगी। वो लोग इतना शायद मानते नहीं, उनके फैमिली में है उनके साइड से मेरी बहू के वो कोई मानते तो है उनकी फैमिली में। तो ब्रेसलेट भी शायद दे रखा था मेरे भाई को। गुरुपा आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए उसको, मेरी अरदास है आपसे, और उस पर भी कृपा कीजिए गुरुपा। और गुरुपा आज मैं मेरे भाई सागर की तरफ से आपसे क्षमा याचना करना चाहती हूँ गुरुपा कि जो भी गलती मेरे भाई से हुई है, उसके पिछले जन्म, उसके इस जन्म में जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है गुरुपा, किसी भी आत्मा को उसके वजह से तकलीफ़ हुई है गुरुपा, तो आप प्लीज़ क्षमा कीजिए गुरुपा, उसको क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए। उसके माड़े कर्म को काट दीजिए गुरुपा और उस पर अपनी कृपा कीजिए गुरुपा। उसकी तरफ से मैं आपका अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। कल का दिन काफ़ी भारी था, लेकिन गुरुपा अभी सब ठीक है, आपकी कृपा है गुरुपा। कहीं ना कहीं आप ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल मैं जो शुक्राना मेरी तरफ से करना चाहती थी वो भी मैं अच्छे से कर नहीं पाई गुरुपा। आपने जो मेरे पे कृपा करी गुरुपा, जो इतने 2 हफ्तों से मैं इतनी परेशान थी गुरुपा, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ मैंने आप पे छोड़ा हुआ था। मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हॉस्पिटल में जाओ ना तो 10 बीमारी और निकाल देते गुरुपा। मैं तो बहुत डरती हूँ। मेरे डॉक्टर तो अब आप ही हो गुरुपा, आप ही देखोगे। और आपने सब कुछ ठीक भी किया है। आप समय लेते हो गुरुपा, मैं जानती हूँ। आप देखते हो, परखते हो। संगत जी ना गुरुपा से जोड़ते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिए कि जो बीच की कड़ी है ना हमारे और गुरुपा के, तो वो एक तो विश्वास है और दूसरा सब्र है कि आपके अंदर कितना सब्र है। क्योंकि गुरुपा ऐसा नहीं होता ना कि कुछ भी चमत्कार जादू एकदम ऐसे हो जाए चुटकी बजाते हैं, समय लगता है हर चीज़ के लिए। तो उसमें आप कितना सब्र करते हो, आप कितना उन पे विश्वास करते हो, वो बहुत ज़रूरी है संगत जी। मैंने यही सीखा है अब तक के समय तक। पर गुरुपा ने समय लिया, लेकिन देखो मेरी जो समस्या थी मैंने कल के सत्संग में शेयर भी किया था संगत जी, वो समस्या गुरुपा ने मेरी ठीक करी, मुझे हेल्पलेस करी है गुरुपा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। जब आपके स्वरूप के आगे खड़ा होती हूँ ना गुरुपा, तो बस आपको शुक्राना करती हूँ मैं। और इतना अच्छा लगता है आपको देख के, बस ऐसे मुस्कुरा रहे होते हो आप देख कर, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ संगत जी, देखो ना गुरुपा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और ना आप ध्यान से देखोगे ना स्वरूप में, अगर उनको आप आई कांटेक्ट करोगे ना, बिल्कुल ऐसा लगता है उनको देख रहे हो आपको। सच में आप ज़्यादा देर ना मैं देख भी नहीं पाती हूँ, एकदम ऐसे देख रहे होते हैं और उनके चेहरे में कैसी हंसी रहती है। वो हमेशा हर पल ना आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे खड़े हो, बैठो, बात करो मुझसे। और हम उनसे बात करते हैं और वो टेलीपैथी के थ्रू उसका जवाब भी हमें देते हैं। तो गुरुपा आपके लिए, आपका ना उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये इतनी जो आपने हमको सब्र दिया है ना गुरुपा, उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, कल गुरुपा ने मेरे बहुत अच्छे सत्संग भी सुनवाए। तो गुरुपा कहते हैं कि बस ना गुरुपा एक बार जब आपको जोड़ लेते हैं ना, देखो हम नहीं जोड़ सकते, वो ही जोड़ेंगे। वो उन्होंने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया ना संगत जी, तो अब जो आपकी लाइफ में हो रहा है भला बुरा सब गुरुपा करवाते हैं। उनको आपके माणे कर्म भी काटने होते, वो तो काटने ही पड़ेंगे किसी तरीके से। तो आप सब्र रखिए, विश्वास रखिए गुरुपा पे, सब ठीक करते हैं, वो वक्त लगता है संगत जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप ऐसे ब्लेस करते रहिए गुरुपा, और मेरे परिवार में और जो भी संगत जो हेल्थ से इतनी मजबूर है ना, उसको बस सबसे पहले तो आप हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, और मुझे भी कीजिए, मुझे भी बहुत ज़रूरत है। आप कर रहे हो हेल्थ ब्लेस, और आगे भी आप ऐसे बस हेल्प ब्लेस करते रहना गुरुपा। आपका आशीर्वाद और आप बस
हमारे अंग संग रहिए, हमें संग संग रहिए गुरु का, अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु का। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देना चाहूँगी और मुझसे बहुत गलतियाँ होती है सत्संग करते हुए। आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु का। जो आप इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी दया हम पे दिखाते हो, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरु का। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए शुक्राना और अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु का। सारी संगत जो हमें सुनती है और हमें इतना ब्लेस करती है, उसके लिए आपका शुक्राना गुरु का। शुक्राना आंटी अंकल का शुक्राना, जो हमारे सत्संग आपके चरणों तक पहुंचा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुपा का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।